خواتین اور حضرات، عید کا مزہ یہ ہے کہ مہمان آتے اور جاتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج ہمارے مہمان آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ بہت بندشیں ہیں ملنے جلنے پہ، لیکن لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے محبت کے آگے کیا ٹھہر سکی یہ چیز، اور اسی لیے ہمارے پاس بھی اب نئے مہمان آ چکے ہیں، اور میں نبیہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا تعارف کرواؤں. خواتین حضرات، جس طرح سخاوت ناز ابھی ہمارے ہاں سے اٹھ کے گئے ہیں تو ان کا نعم البدل کیا، ان سے بہت بہتر بدل اللہ نے ہمیں دیا ہے طاہر انجم صاحب کی شکل میں. میں درخواست کروں گا طاہر صاحب تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ اس محفل کا حصہ بنیں. تشریف رکھیے. السلام علیکم، عید مبارک. عید مبارک. طاہر صاحب یاد ہے بہت سال پہلے ویسے کنال کام کیتا ہے. میں کہنا جی تسی ہر جگہ تے کام کیتا ہے. اچھا مگر میں شکریہ کہ ہر جگہ کیتا ہے، انہوں نے کہتے ہیں نہیں کیا کہ تسی ہر کام کیتا ہے. سر آئے تشریف رکھے سر. بالکل. اب ایک بچی ہمارے پاس تھی پہلے جو کہ وسیع شاہ صاحب کی کو ہوسٹ ہے. اب دیکھیے وہ مشہور ایسے دو کو ہوسٹ رکھی ہوئی آپ دیکھ لیں. سر نام ان کے جو مرضی رکھ لیجیے. مشہور پتہ ہے کیا ہوں گی جب یہ زبردست پروگرام آیا، اے وسیع شاہ دی سجی کھبی ہے، سجی ہو کے چلی گئی ہے. اور اب ہمارے پاس ایک اور بچی ہے جو آپ کی ایک اور کو ہوسٹ ہے، اس کا نام ہے مائرہ. مائرہ آئیے تشریف لائیے. واہ بہت اچھا مائرہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مائرہ بہت ینگ ہے ابھی، لیکن یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کام میں سے بھی. آئی ایم شیور کہ شی ہیز اے لانگ جرنی انشاءاللہ آگے. تھینک یو سو مچ. انفارمیشن آپ تک کیسے پہنچی ہے؟ کیونکہ میں مائرہ کا میں نے کام دیکھا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کہاں دیکھا مائرہ کا کام؟ میں نے مائرہ کا فاؤنٹین ہاؤس کا ایک شو دیکھا تھا، اور بہت دیر پہلے میری مائرہ سے تب ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں ان کو جانتی نہیں تھی، لیکن مجھے تب دیکھ کے لگا کہ بچی جو ہے وہ اچھا یہ انہوں نے سب مجھے بدلا لیا ہے. کچھ دن پہلے ہم ایک پروگرام ایک ساتھ کر رہے تھے تو اس میں ذکر ہوا کہ کون کون سی ایسی گلوکارائیں ہیں جن کی بیٹیاں بھی گلوکارہ ہیں. تو ہم نے کہا کہ کجن بیگم کی گلوکارہ بیٹی جو ہے وہ مہناز ہے، زاہدہ پروین کی گلوکارہ بیٹی شاہدہ پروین ہے. اور اس طرح یہ حونکوں کی طرح ادھر دیکھ رہی تھی. یہ بدلا انہوں نے لیا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کے کام کو جانتی ہے، اور میں اس طرح حونکوں کی طرح یہ لیکن دیکھ جیسے رہا ہوں. آپ موسیقی کو جانتے ہیں اس طرح ہم اینکر برادری کو جانتے ہیں. دیکھیے صرف موسیقی کو نہیں، میں اور بہت سی لوگوں کو جانتا ہوں. بالکل. یہ تو گجرا والے پہلوانا نہیں جاندا. سر میں انہاں دیاں دائیاں نوں بھی جاننا وا انہیں کس طرح جمیا سی. سر پہلوان نوں جمنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو گولا کٹنے والی گل ہوندی ہے. بالکل واقعی. اچھا سر آئیے. طاہر انجم صاحب آپ بھی وسیع شاہ صاحب کے ساتھ اب زبردست کا حصہ ہیں. جی جی جی. سر پروگرام میں ایک تسی ہوندے تے کافی سی، مگر یہ تو کوئی 10-12 نے. خدا دی قسم میں تے نا پروگرام میں پتہ کی کہنا، میں کہنا ایک سیانا تے 10 چلے. تسی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو بات کرتے ہیں چلے تو نہیں ہوندے، مگر یہ بات مزاح کے انداز میں کرتے ہیں. مگر ان کا جو وزڈم ہے، جیسے آپ نے شروع میں جو بات کی تھی میں اس سے زیادہ ایگری کروں گا کہ یہ معاشرے کے نباز ہیں. ایسے نباز اور یعنی کہ معاشرے کی ہر وہ بات جس کو آپ کارپیٹ کے نیچے دبا دیتے ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ اس کو بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی پولائٹ وے میں مزاح کے انداز میں بیان کر دیتے ہیں. وہی بات اگر سنجیدگی سے کی جائے تو بعض اوقات بلوا ہو جائے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی یعنی کہ جو سنجیدہ ہمارے آرٹسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی بڑے لوگ ہیں. دراصل جو میرا اشارہ تھا وہ کسی اور طرف تھا. ایک سیانا تے 10 چلیاں دا وسیع اپنے تو لے گیا، تیرے ول نہیں سی نہ تو ایڈا سیانا نہ یہ چلے. میرا اشارہ کسی اور پاسے تسی جانتے ہو طاہر انجم صاحب میں کی کہہ رہا ہوں. جی تسی بالکل. لیکن اصل دے وچ نا گلدستہ جڑا نا وہ زیادہ خوبصورت لگدا. ایک پھل دی جڑی وہ ویلیو نہیں گھٹ ہوندی ہے کہ بندہ دس نہیں سکدا. گلدستہ ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے. اور شاہ جی نے اتنا خوبصورت گلدستہ بنایا زبردست ٹیم دے وچ کہ جدے سخاوت ناز صاحب نے، جدے وچ ہنی البیلا صاحب نے، جدے وچ میں بھی ہاں، راشد کمال صاحب نے، تسلیم عباس، اور میل ساڈے ماشاءاللہ اس ٹائم پاکستان دی بیسٹ ٹیم ہے ساڈے. بلکہ ہنی کا ذکر میں ضرور یہاں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو مین پلیئرز ہیں جیسے طاہر ہیں، سخاوت ہیں، ہنی بھی ان میں سے ایک ہے. اس وقت چونکہ وہ اسی نیو کا ایک اور پروگرام ہے اس کی ریکارڈنگ میں مصروف ہیں، اس لیے ہنی آ نہیں سکے. سر ہنی البیلا تواڈے کول بھی پنجویں سیٹ نہیں سی ہے. سر اسی دیکھ کے رکھیاں نے یہ آ جاندے تے میں اپنی کشڑ بانا سی. ایسی کہڑی گل ہو گئی ہے؟ کوئی مشکل گل ہے؟ پر سر دل جگہ ہونی چاہیے. مہماناں واسطے کدی تنگی نہیں جو ہوندی. طاہر انجم گل ہے کہ یار اسی تہاڈی بڑی عزت کرنے ہیں، تواڈے سامنے بولدے میں تھوڑا ڈرنا بھی ہے. ایسے لیے مگر تسی میرا لحاظ کر رہے ہو. تواڈے تو پہلے سخاوت ناز بھی یہی کر کے گیا اور شکر ہے لحاظ کر رہے ہو، ورنہ جمیدن ہونی سی. ایک شاہ جی کافی ہیں جو کر رہے ہیں. اچھا میں صرف شاہ جی کا لحاظ کر رہا ہوں. سر میں میزبان ہوں، تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. شاہ جی مہمان نے سارا مزہ انہوں نے اس گل دا رہا سر بالکل ہوگی. لیکن وسیع بات یہ ہے کہ
आप मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहे तकरीबन 5 साल पहले आपने किया 5 साल मेरे तो डका ला के रखे मैंने बैन किया सी उन्होंने पता नहीं जबरदस्त कदों मेरी एंट्री होएगी नहीं कभी भी इस तरह नहीं होया डॉक्टर साहब एक दो सर, बार कितनी बारी बुलाया जी नहीं एक दो बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਦੇ ਸੋ ਕਿਧਰੇ अच्छा मैं ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਸੋ ਦੇ सही फरमा दे मैं वक्फा भी लेना वा ऐसी कोई गल नहीं समझ आई जी तुसी भी चुन के उस दिन मैंने बुलाया जिस दिन मैं मसरूफ था ऐसी केड़ी गल अच्छा खैर सर जी ईद इस्तफा थोड़ी सी फीकी है मगर हम अपने हम तो रात गए जब करते थे तब भी आपको कितनी मरतबा रिक्वेस्ट की आप तशरीफ लाते थे और ये तो दिल पे ले लिए बात मेरी भी किसी हद तक सही है मगर सर जान दो आगे वाल में नहीं ना पीछे जो हो गया ऐसी क्या बात है बिल्कुल अच्छा सर हमने तो कोशिश की है कि आप लोगों को बुला के इस फीकी ईद को मीठी भी मीठा बनाएं किया जाए। और सलूनी भी बनाएं मगर आप क्या महसूस कर रहे हैं इस तरह नहीं ईद तो मीठी है किसी सूरत में भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये फीकी ईद है लेकिन ये जो मोहब्बत का तकाजा ना मिलना मिलाना ये सिर्फ वो जो बात आज कर रहे थे कि जफ्फियों से नहीं है कि मतलब जफ्फी पावे बना तो फिर ही मज़ा आंदा बिल्कुल। दिल की जफ्फी भी एक होंगी है बेशक होंदी है ये सर, समझे। बिल्कुल और और मैं- फासले दी भी जफ्फी होंदी है हाँ जी बिल्कुल और मैं हजे तक यकीन करो तो फासले की जफ्फी पाई जी सर बिल्कुल मैं समझ और मेरा दिल करता तो वैसे जफ्फी पा लूं। बिस्मिल्लाह जरूर पावांगे ऐसी केड़ी गल है सर देखो जी मैं भी वैक्सीन लवाई तुसी भी वैक्सीन लवाई समझ आई ऐसी कोई गल नहीं अगर आप वैक्सीन लड़े फेस करनी चाहिए मगर सर ऐसे ने बेहतरीन प्रोटेक्शन यही जे मैं तो लोगों को कहना वा कि अगर आप लोग अभी वैक्सीन लगवा लेंगे तो यकीन कीजिए बड़ी ईद तक कोट जफ्फियां पाया जे यकीन करें तब तक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे शायद साहब बात यह है कि आजकल लोग मोहब्बत भी व्हाट्सएप के आइकॉन्स पे करते हैं आपको पता है बड़े बड़े प्यारियां चीज़ें ने एक चेहरा बनया होता छोटी चुम्मी होती है वो देख के अगला उसका जवाब दे देते 2 होंठ बने होते सर कितनी आसान बस ये आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत अब कितनी आसान हो गई सर मेरी आपकी मजाल थी कि हम किसी को ये ऐसी चीज भेज सकें और पता भी ना चले सही कह रहे हैं और बाद में जब हमारी गर्दन पकड़े तो हम कहें नहीं ऐसी क्या आइकॉन्स में से देख के भेज दी ऐसी तो कोई बात नहीं है सर बड़े आसानी से रास्ते निकल आए हैं वाकई बिल्कुल ठीक अच्छा बस बात यह है कि शायरी आपके होते हुए ना हो ये नामुमकिन है मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ताज़ा गज़ल आप हमारे लिए यकीनन लेकर आए हैं मिठाई तो ले आएगी सर देख लो खाली हक आ गए भाई ठीक है ईद मिलने जाना था नया प्रोग्राम शुरू हुआ था मैं उदी पब्लिसिटी कर करके सुक गया मेरा मुंह खुदा दी कसम नहीं तो आपको दो मोहब्बत है। मेहमान नवाजा नाल बुलाया उन्होंने जी सर मोहब्बत आपकी होती मैं आपको सुनाया तो बल्कि आपकी घर में भी सुनाई थी आप सर, बिल्कुल मुझे पसंद याद भी है। आई थी मैं वही सुना देता हूँ हम तुम थे माहताब था और रहगुजार थी वाह वाह। हम तुम थे माहताब था और रहगुजार और रहगुजार थी ऐसे डॉक्टर साहब को ज़ौक ऐसा है कि इनको सुनाते हुए जरा संभल के सुनाना पड़ता है इन्होंने शेर का मजा शेर तो पहलों आ जाना नहीं सर, डॉक्टर साहब के ज़ौक तो वो तो फिर मजा है ही है सर बात है कहने का मतलब है कि तलफ़ुज़ जो है उनके सामने हम तुम थे माहताब था और रहगुजार रहगुजार थी थी। चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर मेरे मामले में वो बे इख्तियार थी और शेर सुनिएगा डॉक्टर साहब के मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल वो शौकियाँ भी करते हुए बावकार थी वाह वाह और शुक्रिया और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी वाह 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 शुक्रिया और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी शुक्रिया। सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी वाह और सर शक के- बेइंतहा उम्दा शेर और क्या सर इतनी लंबी गजल और बेइंतहा हर शेर बहुत अच्छा एक होता है गजल में हासिल है गजल एक शेर होता है ये तो माशाल्लाह सारा इंतखाब है बड़ी बात, बड़ी ताहिर बात। अंजुम साहब मैं एक बात समझता हूँ कि शायरी और गाली और इजहार मोहब्बत अपनी मादरी जबान में होना चाहिए सर उसकी तासीर ही अलग होती है उसका क्या जायका ही बात, अलग होता क्या है बात। अच्छा सर कभी कभी मैं भी तुकबंदी करता हूँ और आपके सामने देखकर मलकों के सामने देखकर मलकों के गीत जो होते हैं मैं भी आपको कुछ क्योंकि शाह साहब मुलाकातें कम होती हैं मैंने जो एफएससी में या मैट्रिक में अपनी गज़ल लिखी थी मैं सुनाऊंगा आप सर बिल्कुल सुनाए उससे पहले सर सिर्फ एक छोटी सी नज़म मैं आपको सुनाने लगा हूं की पता चुन लें ते गा दें ते मेरा भी काम बन नहीं, जाए नहीं, मैं ज़रूर। सर फड़ वीनी तक नबज तबीब हबीब मेरे वाह, वाह। वीनी तक नबज तबीब हबीब मेरे दिल चंदरे दा कोई इलाज दा तू दिसदा रवे ते तड़कदा ए वाह। तू क्यों जांदा तेरे बाज दा वाह, वाह। तू दिता कौल में वसा कीता ला चांजरा बेड़ियां छनकाइयां ने खो गहने अपने तन तो मैं
ਸੰਗਲ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹ। ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੱਥੀ ਕੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਪ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਦਿਲੋਂ ਵਾਹ। ਜਾਨ ਜਿੰਦੜੀ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਸ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਦਰ न जानी बेकदरा क्यों कदर न जानी बेकदरा इंज कीता क्यों बर्बाद दस दे सोनिया ये गल मुनासिब नहीं खुफिया गैरा नाल बनाई ते मैं तां तेरियां रावां मलियां तेरे पिछे सब दियां चलियां विच तूफाना में कलम कलियां रेत गरम ते सड़ गईयां तलियां किथे जा बसे होए दिलदार दस दे कद आ मुड़से सरकार दस वाह जी वाह जी वाह। शादी ये वाकई मेरी नजर है शक में मुब्तला न होइएगा। पहले भी सुनी। ख्वातीन हज़रात हमारे साथ रहिए बातें दिल की भी हो रही हैं मोहब्बतों की भी हो रही हैं ईद की भी हो रही हैं कोरोना की भी हो रही हैं हम बाकी केड़ा मौजूद रह गया आपको अगर ख्याल लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी है मुझे फ़ोन करके बताइए हम उस पर भी बात कर लेंगे हमारे साथ रहिए और इंशाअल्लाह ताला अपनी ईद को शानदार बनाइए बिस्मिल्लाह। ख़वातीन हज़रात एक बार फिर हम हैं हमारे मेहमान हैं और आप हैं और इसके बाद किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़रूरत है। शाह जी मैं पूछूंगा ये कि मैं इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा आपकी पहली एपिसोड देखने के बारे में और मैंने नक्काद की निगाह से देख रही मैं आपको ये बता दूँ नहीं जरूर। वसी बात पता है क्या है लोगों को ये नहीं पता कि हम जो होस्ट होते हैं हम एक दूसरे की मजबूरियाँ समझते हैं हम ये जानते हैं कि हम कितनी मुश्किल में होते हैं जब कोई ट्रांसमिशन या कोई प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते हैं कभी हमने जिक्र नहीं किया इंशाअल्लाह ताला किसी महफिल में बैठ के हम अपने ऑडियंस को बताएंगे कि होस्ट की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं जितनी वो ये समझते हैं वाकई। मगर क्या किया जाए जिनको ये शौक हो वो हटते हैं भला। अच्छा सर ये प्रोग्राम आएगा हफ्ते के किस दिन या किस किस दिन आएगा? डॉक्टर साहब 4 दिन यानी कि मैनेजमेंट ने तय किया बल्कि मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ जो ओनर हैं हमारे न्यू नेटवर्क के नई बात के चौधरी अब्दुल रहमान साहब उनका हम ज़ाती तौर पे चूँकि वैसे तो आप काम कर रहे होते हैं एक ताल्लुक आपका बज़ाहिर एक कारोबारी ताल्लुक होता है मगर चौधरी साहब से चूँकि मेरे मरासिम कम से कम भी 15 बरस पुराने हैं और इस दौरान में कभी भी उनकी जो शफ़क़त है वो हमेशा हमारे साथ रही तो उन्होंने ख़ास तौर पे यानी कि आप जैसे कहिए कि कम इदारों में इतना फैसिलिटेट किया जाता होगा जितना उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है और उसके लिए जो अहम तरीन आदमी मैं समझता हूँ जो हमारे मुमताज़ भट्टू साहब जो प्रोग्रामिंग देखते हैं उन्होंने भी बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लेके चूँकि होता यह है कि अगर आपको फर्स्ट कर लिए कह भी दिया जाए कि भाई इतना बजट है मगर जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे ठीक तरीके से सारे मामला नहीं होंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। सही। तो मुमताज़ भट्टू साहब ने भी जिस तरीके से हमें फैसिलिटेट किया है यही वजह है कि फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई इसको 4 दिन के ऊपर लेके जाया जाए और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे और ये हम किस स्लॉट में कब देख सकते हैं? 11 से 1 बजे तक 11 से 12 11 से 12 1 घंटे जैसे का कि बहुत वो है। सारे जो हैं शोज अभी कंपटीशन में चल रहे हैं बहुत अरसे से तो कैसे जब भी एक नया शो लॉन्च होने जा रहा होता है तो हमेशा पूरी टीम की चैनल की कोशिश ये होती है कि हम अब कोई चीज़ डिफरेंट लेके आए बाकी शो से हट के लेके आए तो इस शो में हमें क्या डिफरेंट ये नजर नबिया बहुत ही अहम आपने सवाल किया हमने कोशिश ही की देखिए होता ये है कि फॉर्मेट जो है मिसाल के तौर पे जैसे 1/3 का है एक होस्ट होता है 3 सियासतदान है अब आप उसको कितना मुख्तलिफ बनाएंगे तो आपको जो लोग पसंद भी करते हैं जी हाँ नहीं मैं आप जी हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं मगर होता ये है कि बाज़ औक़ात उसकी जो बुनियाद है इन शोज़ की उसमें इतनी गुंजाइश होती नहीं है कि आप फॉर्मेट को चेंज कर सकें तो आप बुनियादी तौर पे कंटेंट से उसको वो करते हैं फॉर्मेट एक जैसा होता है मगर कंटेंट किसी का अच्छा किसी का वीक किसी का बहुत अच्छा होता है लेकिन हमने ये कोशिश की है कि उस फॉर्मेट के अंदर रहते हुए जो सेगमेंट्स हैं मसद अच्छा बुरा होना तो वक्त तय करेगा अल्लाह ताला की कितनी हम पे मेहरबानी है हमने कितनी मेहनत की है ये तो वक्त या लोग डिसाइड करेंगे मगर एक चीज़ का जो हम दावा कर सकते हैं चूँकि वो दावा ऐसा है जो यानी कि आप चलिए स्टैटिस्टिक्स की मैं एक तरह से बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ जो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है वो ये है कि कम से कम भी 50-60% शो में सेगमेंट्स ऐसे हैं जो इससे पहले आपने सब कॉन्टिनेंट में किसी आपने उसमें प्रोग्राम में नहीं देखे होंगे जी जिद्दत है तो बिल्कुल ही उसमें नयापन है मैं ये कतई नहीं कह रहा कि वो अच्छा है या बुरा है मैं कह रहा हूँ कि वो नया है इस शो का नाम ही जबरदस्त है वो यकीनन देखने में भी जबरदस्त होगा। मायरा मुझे बताइएगा आपको हम किस तरह से इस शो में देखेंगे? वेल मैं को होस्ट हूँ लेकिन आपने बहुत से प्रोग्राम्स देखे होंगे जहाँ पर को होस्ट सिर्फ तालियां बजाने के लिए बैठी होती हैं या सिर्फ हंसने के लिए बैठी होती है इस प्रोग्राम में हम नहीं बेटा कई जगह वो हो सिर्फ आखिरी जुमला सुन के उसको रिपीट करने के लिए भी बैठी होती है। हाँ लेकिन हमारे प्रोग्राम में ऐसा नहीं है शाह जी ने हमें किसी को समझ नहीं आती है तेरे अलावा शाह जी ने हमें खुद बताया हमें खुद मौका दिया है कि अब आपको ये बोलना है और आप यकीन करें कि समटाइम्स हमारी एनर्जी जाहिर है काम आप जब इतने काफ़ी आर्स से कर रहे हो तो आप थक जाते हैं तो शाह जी वाज लाइक
कम ऑन मायरा, कम ऑन महरीन, तो हमें Support वहाँ से एग्जैक्टली, मिल तो रहा है। हमें जब एक इंसान का पहले सुना हो लेकिन उसके बाद जब उनके साथ काम करने का मौका मिले तो आपकी बिल्कुल एक जो सोच होती है वो बदल जाती है उनके बारे में। तो शाह जी के साथ काम करके मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस वक्त मुझे नहीं मिल सकती थी। ताहिर And साहब, I'm मैं एक very बात आपसे blessed अर्ज करूंगा, to be मैं ऐसे एक जुमले की इजाज़त जी, दीजिए। ज़रूर। मायरा ने बहुत ही हमें इम्प्रेस किया, चूँकि अमूमन तासुर यही होता है कि भाई इस शोज़ में जो ख़वातीन हैं वो आई कैंडी के तौर पर विराजमान होती हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सच्ची बात यह है कि बाज़ औक़ात जो ख़वातीन होती हैं उनको भी अपने आप को साबित करना होता है कि आप भी कुछ पढ़ के आएँ, जो बात कही जा रही हो उसे समझें। अगर कोई सिचुएशन, कोई जुमला आपको दिया गया है, कोई सवाल आपसे कहा गया है करें, तो वो आपका भी अपना वो होता है कि आप उसमें कितना वो कर सकते हैं। तो मायरा ने बहुत ही, यानी कि जो भी इनको जिम्मेदारी दी गई है, मायरा ने उसको बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म किया। और एक दिन तो उड़ के कैमरे ते बैग ही गया। इसका फायदा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इनका रोल जो है वो शो में हम फिर बढ़ाते जा रहे हैं। ताहिर Thank अंजुम you so शुक्र much, कर के sir. उसे आलना नहीं पा लिया ताकि कैमरा किसी कम जो का रह गया फिर। अच्छा ताहिर, मेरी नज़र में बच्चियां बहुत अच्छी होंगी, लेकिन को होस्ट हैं, जो पिलर है जिसके पर ये प्रोग्राम खड़ा होगा वो सखावत नाज, ताहिर अंजुम और हनी अलबेला है, कम अज़ कम मेरा ये ख्याल है। एक आध साहब और भी होंगे, मगर से इनके मुकाबले में कोई ठहर नहीं सकता, और तुम्हारे मुकाबले में बाकी सारे फिक्के ही होंगे। मैं सही गल कह रहा हूँ। आपके क्या रोल्स होंगे इसमें? क्या आप बदल बदल के कैरेक्टर आएंगे, मुख्तलिफ शक्लों में नजर आएंगे, या एक परमानेंट कैरेक्टर है? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ नहीं, ਤੇ सर, मैं ਬੇਸਿਕਲੀ इमानत नाल के, ईमानदारी नाल के। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਲਰ मुझे ਜਿਹੜਾ एक ਉਹ जुमला डॉक्टर जरूर दे दें, चूंकि आप मेरी टीम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बज़ाहिर जो पंचिंग बैग है, पंचिंग बैग कभी जाकर लड़ता नहीं है। मतलब मोहम्मद अली किले से कभी किसी ने नहीं पूछा कि उसने कितनी उस पंचिंग बैग के ऊपर बॉक्सिंग करके और तरबियत ली है और उसकी वजह से मोहम्मद अली किले बने हैं, मगर उस पंचिंग बैग की हैसियत मोहम्मद अली किले को मोहम्मद अली किले बनाने में मौजूद है। तो जो बाकी दोस्त भी हैं, अगर उनकी पार्टिसिपेशन कम भी हो या इतना बड़ा नाम ना भी हो, तब भी उनके बगैर मैं समझता हूँ कि शो जो है वो निकल के आ नहीं सकता। वही बात तो हर आदमी की एक अपनी हैसियत है। सर बेशक अपनी हैसियत है, मगर एक बात मैं समझ गया हूँ सर, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣेगा? आप अगर मेरी टीम को अगर आप रेडिक्यूल करेंगे तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये तो बताऊंगा ना कि तमाम लोग जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं। किसी का रोल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी की सलाहियत कम होती है, किसी की सलाहियत ज़्यादा होती है, मगर सब हमारे लिए मोहतरम है और हम और बराबर है। बिल्कुल ठीक है। शाह जी के साथ मैंने 5 साल काम किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाह जी ने किसी को मतलब बोलने ना दिया हो, हम ही बोलते हैं और शाह जी हमें अप्रिशिएट करते हैं मेरा हमेशा। सवाल अपनी जगह है कि आप किस किस रोल में नजर आएंगे? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਤਾਹਿਰ ਅੰਜੁਮ ਸੋਚ ਲੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਕੀ। ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਮੈਂ सर जी ਕਰਾਂ। मेरा केड़ा केड़ा रूप अपनावेगा बाहर तौर कोशिश करके वेख ले, मेरे वास्ते भी बड़ी बाइस से इज्जत गल होगी। सर जी रोल उन्होंने दे बनते हैं, पैरोडी उन्होंने दी हुंदी है ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਮੇ ਦੀ ਕਾਬਿਲ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰਡੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਾਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। बड़ी इनायत सर, बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा सर, मैं एक बात और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ईद के दिन से इसको लॉन्च कर रहे हैं या आगे पीछे? 4th डे ऑफ ईद से, Fourth day of Eid. मंडे से इंशाल्लाह ताला ईद के चौथे दिन से आप ये देखेंगे, और फिर ये है कि 4 दिन आपको सर इंशाल्लाह आपके लिए और आपकी टीम के लिए बेस्ट विशेष। आई एम श्योर कि ये बहुत जबरदस्त शुक्रिया, होगा शुक्रिया। इंशाल्लाह। लेकिन सर बात यह है कि हमारी जो ईद के दिन हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ईद और टरू और मरू, और इसके अलावा अगर आप कराची चले जाएं तो ईद और बासी ईद और तबासी ईद, मगर सर पाकिस्तान में एक अजीब हिसाब भी है। पहले दिन तो ईद होती है, दूसरे दिन पता है क्या होता है? यौम सुसरा ईद, यानी कि समझ गए ना आप सारे ब्याहे लोग सारे समझ गए बिल्कुल। अब हमें लेकिन पता चला कि ईद की खुशियां चौथे दिन तक भी कंटिन्यू करेंगी जब जबरदस्त आएगा। मगर ख्वातीन हुज़रात, ज़बरदस्त का ये इतना ज़बरदस्त प्रीव्यू जो हमने आपको दिया है वो आज आपने हमारी महफिल में देखा है, और मुझे यकीन है कि इस महफिल को देखने के बाद बेशक मैंने रिडिक्यूल किया लोगों को, मगर आपके दिल में शौक ज़रूर पैदा होगा कि आप इस प्रोग्राम को देखें ज़रूर, और आई एम श्योर कि बड़ी जल्दी फेवरेट हो जाएगा लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल मकबूल होगा, क्यों नहीं होगा? इतनी अच्छी टीम होगी तो जरूर होगा। डॉक्टर साहब, वक्त की अब जो है वो हम अपने प्रोग्राम के एंड की जानिब जा रहे हैं, लेकिन मलकू से हम प्रोग्राम के आखिर में इख्तिताम पे कुछ ना सुन के जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं लेकिन सकता। की
क्या मतलब नबीहा, मैंने तो अभी तक बातें ही शास्त्र पे की हैं कि एक आखिर में गाना होगा। बिल्कुल, मैं मलकू को एक दफा फिर से अगर आप तकलीफ दूंगा। गुस्ताखी न समझे तो मुझे इतनी इजाज़त दे दें, क्योंकि मुझे तो अपनी टीम बहुत प्यारी है और जब मुझे वो इतना प्यार करते हैं तो मुझे भी शफकत करनी पड़ती है। माहम जो है वो इस शो में हुआ करेंगी, शबनम मजीद साहिबा जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की मौसीकी का, बेशक। वो मुस्तकिल हिस्सा होंगी। फिर फारूक शाह साहब एक बड़े मारूफ सिंगर हैं, वो इसका हिस्सा होंगे। फिर उसके बाद नासिर मस्ताना साहब हैं, फिर तस्लीम साहब हैं, फिर राशिद जी मैंने जिक्र और कोई कर दिया। दोस्त रहते नहीं दुआ भी है। जी हाँ वो है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं हसीब खान साहब, उनका तस्करा न करना जो है वो बड़ी ज्यादती होगा, क्योंकि इस जॉनरा में इतनी ज़्यादा मेहनत होती है कि उनकी जो एनर्जी है और उनकी जो क्रिएटिविटी है उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि शो जो है इस वक्त जो भी उसका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को हम मेंटेन और मीट कर बस सकें। ये एक मैं आपको तो मैं बात समझता बताऊं। हूँ कि और फिर हसीब की जो पीछे जो टीम है वो भी एक तो पूरा एक पैराफिनेलिया है, सबका शायद हम नाम नहीं भी ले सकते, मगर उन सबको ये पता होना चाहिए कि ये शो जो है ये उनकी वजह से है और ये उनका शो है। अमेजिंग। बस ही असल में बात यह है कि जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो प्रोड्यूसर होता है। अगर आपका अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया है तो पूरी टीम को मैनेज करना उसी के हाथ में है। अल्लाह करे हर एंकर को अच्छा कुछ और मिले या न मिले, अच्छा प्रोड्यूसर producer, मिल जाए। वाह, कोई उसके शक, बाद बिल्कुल, हर चीज पार है। कोई शक। मैं बड़े डोरे आजकल डाल रहा हूँ तुम्हारे प्रोड्यूसर के ऊपर। देखो कब तक कामयाब होते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी- ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਣਾ। मेरा एक अमूली सर। मगर देखो जी गल है कि एक अच्छे लायक इंसान को हर कोई पसंद करता जी है। हाँ। आप यकीन कीजिए अभी कुछ दिन हम पहले रमजान में हमने एक बड़ी लंबी रमजान ट्रांसमिशन की है। माशाल्लाह। बस ही यकीन कीजिए ऐसे लगता था कि जैसे कम से कम मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक पिकनिक पे आया हूँ या इफ्तार पार्टी पे आया हूँ। उसकी बहुत बड़ी वजह मेरा प्रोड्यूसर और मेरी प्रोडक्शन टीम जी, थी। जी, और नबीहा को तो पता नहीं ऐसा लगता नहीं होगा सर जी, आई एम अ वेरी डिफिकल्ट को होस्ट। मुझे पता है कि मैं बहुत एक मुश्किल इंसान हूँ। नहीं वो अंदाजा हो रहा है। सर बिल्कुल आपको अंदाजा अब हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और क्या ये आखिर में आके अंदाजा हो रहा है। पहली ब्रेक में नदिया को अंदाजा सर पहली ब्रेक में अंदाजा हो जाना चाहिए। मगर सर क्या किया जाए, अपने आप को बदला नहीं जा सकता। ठीक और है, मैं बदलना चाहिए भी नहीं डॉक्टर सर जी, और साहब। दूसरी बात आप हमें मैं बताऊं डॉक्टर साहब ऐसे ही अजीज हैं जैसे सर जी, हैं किसी और की आसानी के लिए मैं अपने आप को आसान आप करूं, ऐसे ही मैं अजीज कभी भी ना करूं सर। आप बिल्कुल। ऐसे ही अजीज हैं जैसे हैं। बड़ी इनायत सर हम आपकी। मुझे यकीन है कि एक बड़े कंपेटिटिव फील्ड के अंदर आपका प्रोग्राम जबरदस्त भी बहुत शुक्रिया, कामयाब इंशाअल्लाह। है। मगर इस वक्त जो चीज़ मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ वो मेरा एक बड़ा फेवरेट गाना है। आज जब पता चला कि मलकू ने आना है तो मैंने सोचा कि कोई 25-30 गाने तो मेरे फेवरेट है ने मलकू दे, मगर वक्त की कमी ऐसी है कि 3-4 गानों से ज़्यादा नहीं हो सकता। सर एक गाना बहुत ही मुझे आपका अच्छा लगता है, वो ये है कि होरा नू लोकां नू गोल गप्पे ते सानू लारे लपे। खानू लारे लपे। सर कमाल लफ्ज़ है ये। मगर सर एक गीत मैंने आज शामिल करना है और मुझे वो बहुत पसंद है। और आपको पता है कि उसका एक रिफ्रेन है जो कि लता बाई मंगेशकर ने गाया था। जी, जी, बिल्कुल। तुमको हमारी उम्र लग जाए। उम्र लग जाए। आपने उसको कैसा मिक्स किया है, मुझे यकीन है कि बंबई में बैठी हुई वो बड़ी गुलकारा ने जब सुना होगा, बहुत बड़ी अल्लाह का मौजज़ा है सर, तो उन्होंने भी दुआ दी होगी कि या अल्लाह मेरी भी गाने ਨੂੰ रीमिक्स करके एक नई जिंदगी दी जा रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि उर्दू में गाना था उनका और फिर इसको सराइकी में और उसी लेवल की पोइट्री बड़ा मुश्किल काम और था। सर मैं चाहता हूँ सर, कि मैंने ये जरा कोशिश की है कि हमारे नाजरीन ये देखें और सुने कि अगर आपने किसी गाने को किसी और गाने से मिलाकर उसमें जिद्दत पैदा करनी है और नई रूप फूंकनी है तो कैसे फूंकी जाती है। बिस्मिल्लाह, आइए सर।